होता है वो भी हमने फिल्म में देखा, एंड कार्टल्स किस तरीके से इससे पैसा कमाते हैं वो भी हमने देखा, और एलिफेंट्स इसकी वजह से कितना सफर करते हैं वो भी हमने देखा. तो दैट इज आई थिंक द यूएसपी एंड डिफरेंट थिंग इन दिस फिल्म. मेरा क्वेश्चन आपसे ही है, आपकी थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. सी Cartalan, let me talk about Cubes, Sharif Bhai. He's like family to me, and this is my second movie with him. He is a great producer, and he gives a open hand to all his directors. आपने मार्को भी देखी है, and it was a massive hit. Creating some phenomenal experiences and leading the way in many ways, and we saw Pushpa earlier, and of course this is brilliantly following the footsteps over there. Ladies and gentlemen, for the very first time in front of you, Kattalan. Thank you so much. I just have to acknowledge certain very important people who are associated with the project. Without their efforts, this truly couldn't have been possible. Ladies and gentlemen, Kattalan is produced by Mr. Sharif Muhammad under the Cubes Entertainment banner, and of course goes without saying, this is from the makers of Marco. A huge shout out for Marco, please everyone. Super stuff. This is directed by Mr. Paul George, and this is a Ravi Basroor musical. The Hindi pan-India distribution has been done by Jai Viratra Entertainment Limited, and of course, like I mentioned, we have the entire team over here. You all saw the spectacle. This is only gonna get bigger and better with time. Kattalan, ladies and gentlemen, we have the entire cast, and a very phenomenal and rare experience indeed here in Mumbai. What we usually do is कि हम जब screening रखते हैं तो screening के पहले ये ट्रेलर लॉन्च वगैरह हो जाता है, राइट? इट्स नॉट एवरी डे दैट यू गेट अ डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी टू एंगेज एंड इंटरैक्ट विद द कास्ट इमीडिएटली आफ्टर यू सीन अ प्रोजेक्ट, राइट मेरे भाई, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ, एकदम सही ना? That's exactly what I have. The fantastic cast over here, some of the important cast members, they're all present over here. I'm going to be calling them one by one. I believe they're seated at the back, and as I call their names, I'll request all of you to please join me. And of course, he's balancing sports analytics as well. He's doing some phenomenal work as an actor, at the same time associated with Mumbai Indians IPL team. Great stuff. Congratulations. Thank you so much, brother. Can we have a bigger round of applause for him, please? The one and only Mr. Hari Shankar. My next introduction is going to be about somebody who just doesn't really need an introduction, because मैंने जब introduce किया था तभी उनका थोड़ा बहुत introduction हो गया था, right? When I talked about Pushpa, so of course goes without saying, I'm talking about the one and only Raj Tirundasu sir. Ladies and gentlemen, brilliant work earlier in Pushpa, and now he's making his way with full swag. Thank you so much. मैं next बुलाना चाहूँगा on stage a very fine actor. He knows how to do whatever he's been trusted with by the directors and the producers. आप लोगों ने उनका बहुत ही बेहतरीन काम देखा है already in Kill. Mr. Parth Tiwari, please. तालियां रुकनी नहीं चाहिए, ladies and gentlemen. If I can have the biggest round of applause for Parth Tiwari. Thank you so much, Mr. Tiwari. Body का थोड़ा टिप हमें भी दे देना sir. Thank you so much. Thank you so much, and ladies and gentlemen, I have to talk about this man. Truly in today's current Indian scenario, one of the most talked about villains and antagonists in the country that we have right now, always killing it with whatever role that he's been trusted with. He's known for his physique, but I think more than that, he's known for his great skills as an actor. He was simply phenomenal, as we all know, in Marco, and I think he's only taking that legacy forward over here with Kattalan. Ladies and gentlemen, Kabir Duhan Singh के लिए जोर से ताली please. वापस कंटिन्यू कर सकते हो, कबीर सर खुश हो जाएंगे. क्या बात है. Thank you so much. Thank you so much. What a pleasure. Individually आप लोगों ने ताली बजाए, consolidated ताली हो जाए चारों के लिए. Pass it on to my friends and incredible dignitaries from the media. I have certain questions for all of you over here which I want to actually ask. So कबीर जी, मैं आपसे चालू करना चाहूँगा. You were truly fantastic in whatever projects you have played so far. Mark, what's been your experience and everything like? First of all, good evening everyone, and so when director gives an open hand कि यार go and make a good cinema, I'm stand next to him, so picture अच्छी बनती है. You saw the trailer और film आप लोगों ने देखी है, so production quality देख लो आप, shot taking देख लो, director काम देख लो, it's really good, and like I said, it's a family to me, and many more to come यार. मतलब मुझे अच्छा लगता है अच्छा काम करना. This is my 86th movie in last 10 years, and I'm very grateful क्योंकि यार journey being a हरियाणवी गाय, गांव से निकल के साउथ में काम करके now coming to Bollywood, एक खोटा सिक्का चल गया यार. हर हर महादेव यार, खोटा सिक्का चल गया. हर हर महादेव. एंड इट्स जस्ट अ बिगिनिंग. अभी तो बॉलीवुड बाकी है यार.
शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और बहुत मेहनत करी है यार, 10 साल 86 मूवीज, ओह मतलब, एंड इट्स नॉट इजी फॉर मी यार यहाँ तक आना, आप सबके सामने खड़ा होना यार, और ये लड़ाई तो बहुत लंबी चलने वाली है यार, तो थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। All I can say is लड़ाई लंबी चलने वाली है सर, लेकिन you have already started in a victorious note, so I'm sure it's only going to get bigger and better. Thank you so much. Touch wood. That's what it is. हर हर महादेव, हर हर महादेव. That is what it is. जिनके ऊपर महादेव का हाथ है और क्या ही चाहिए. मेरे से पूछा जाता है यार, who's your manager? Who takes care of your work? मतलब हर कोई पूछता है मुझसे, तो मैं बोलता हूँ यार, he is my manager, महादेव, so he is taking care of my work nicely. क्या बात है. The best manager one can have indeed. मैं अगला सवाल पूछना चाहूँगा राज जी से. राज जी has a mic. हाँ, perfect. Thank you so much. मैं ये पूछना चाहूँगा कि right in the very introduction itself, as I was talking about Pushpa, right? All the great work that South film industry is doing and leading the way for the rest of the country. You've been a part of that. Yeah. You're being a part of this right now. You're going to be a part of everything that's happening in the country in the future, touch wood by God's grace. But Yeah, I just of want to course, understand. Yeah, exactly. Right. Manifestation is the ultimate power. But I want to understand what was the similarity about being a part of this as well as Pushpa, and also how different was Kattalan in terms of a beautiful cinematic experience for you. See, Pushpa is it's a completely different role for me. Like you guys already saw that film, right? His aggression always on the edge, kind of. But comparatively, that Pushpa role, this Kattalan is much more mature role for me. Yeah, the complete team is different. Telugu industry works different, and Malayalam is also different. But the director Paul Judge, the technical knowledge, whatever he had, is brilliant. एवरी फ्रेम में हम लोग देख सकता है इसका ब्रिलियंस, और टेक्निकल नॉलेज ऑल्सो बहुत अच्छा है. एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद दैट गाय इन मलयालम. दिस इज माई फर्स्ट मलयालम फिल्म, आई मीन लाइक डेब्यू फॉर मी इन मलयालम. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस, एंड या प्लीज वॉच दिस मूवी इन थिएटर्स एंड लेट अस नो. थैंक यू सो मच. I want to tell about director यार. I was the first one in this movie जिसने फिल्म सुनी थी. I was shooting for one of my upcoming Malayalam movies, Suresh Gopi sir, Ottakomban, वो next release है मेरी. So I was shooting for that movie and he came to my location and he narrated me this film. He told me, यार, you're the first person, hero ने film नहीं सुनी है, but I want to narrate this film to you. And I said yes. And I've seen his, hard work. 110 दिन का shoot था movie में. And डे एंड नाइट, धूप है, बरसात हो रही है, नहीं हो रही है, धूप निकल रही है. सो मैंने उस बंदे की, पॉल जॉर्ज की मेहनत देखी है कि उसने क्या डिलीवर किया है. एंड यू हैव विटनेस्ड द फिल्म नाउ, यू हैव सीन द फिल्म. ही वाज वन ऑफ द वेरी काम एंड रिलैक्स्ड डायरेक्टर. मतलब ही स्पीक्स वेरी लेस. वो काम, व्हेनेवर आई गो टू हिम कि सर अच्छा बताओ अभी क्या है क्या नहीं है, ही वाज वेरी पर्टिकुलर फॉर द शॉट. जो शॉट वो लेने वाला है, ही विल नेवर कॉम्प्रोमाइज इन द शॉट्स. So very calm, relaxed in the set, and bus calm. Or I'm like we are all are very grateful. We are part of this film. Yeah, thank you. Thank you. I think calm में काम निकल गया, मैं वो बोल सकता हूँ. That's what it is. I want to take my next question to Mr. Parth. Here's a mic. Yeah, perfect. Thank you so much. I want to understand that जो मैंने introduction में भी कहा आपके लिए, you've killed it in Kill, and now you're going to be killing it in Kattalan as well. What is like your mental state when you do these kind of thrillers and really intriguing roles, because it takes a lot from you within, right, to deliver as per the expectations of the director. So how do you prepare yourself mentally for these kind of intriguing roles? Starting word is kill. He'll do only movies with. Oh, acha, okay. See, if I talk about my preparation, so I am a kind of a actor जिसको बहुत सारा information पहले से चाहिए. So I am always after the director कि सर क्या है, मुझे बताओ इसकी past story क्या है. काटालन के साथ भी, पॉल के साथ भी सेम था. On call, I think we had 6 calls and I was like कि what is Robbie like. So मेरा preparation is always discussion and more of information जिससे कि मैं character build कर सकूँ. सिद्धि in Kill was more raw, rustic. एक lower middle class background से आ रहे हैं वो लोग, और वो काफी डिफरेंट कैरेक्टर था. यहाँ पर रॉबी इज रिच, स्टाइलिश, एंड सिद्धि डजंट टेक्स हिज ओन डिसीजन बट गोज विद द फैमिली, एंड हियर रॉबी इज अपने मन की मर्जी करता है. सो दैट इज द मेन डिफरेंस इन बोथ द कैरेक्टर्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट द चांस टू वर्क इन मलयालम सिनेमा, बिकॉज आई थिंक मलयालम सिनेमा इज द वन जो सबसे ज्यादा रिस्क ले रहा है.
at least I really love movies coming out of that industry, and they have come into action, and Mako was a very good example of it, and I hope कि Cartalan भी आपको अच्छी लगे. So we did our hard work, the team did their work, and I'm very thankful that I'm part of this project. Thank you. Fantastic stuff. I think all we can say is fortune favors the brave. तो अगर मेहनत करते बहादुरी से आगे बढ़ते तो वो ऊपर वाला भी साथ देता है. So that's exactly what's happening in your case as well. I want to move quickly to you, sir. What is this balancing of sports analytics, movies, completely different parallels, yet two really popular things in a beautiful country like India. मुंबई इंडियंस के साथ भी बेहतरीन काम कर रहे हो, मूवीज में भी काम कर रहे हो. क्या बाकी रह गया सर? अब मुझे पहले वो बताओ. What is left? गुड इवनिंग एवरीवन. आमची मुंबई आने में बहुत खुश हुआ, एंड मुंबई इंडियंस के साथ काम कर रहा था, अभी नहीं. The experience is always there. Yeah, it's always there. No, but we have to be right. Yeah. So I used to work with Mumbai Indians for 3 years, good 3 years, 2013, 2014, 2015. And then it was a long journey with cricket analytics, but then after a point I decided I need to chase one more passion. This was always been my dream, so I left everything and wanted to pursue this, and that's how I started. This is my third big role movie. I'm very happy to be part of Cartalan, such a great setup. The entire star cast and the entire crew members, they're all they have list of movies to say when they call, but for me it's I have only one or two, pick and choose, but still such a character which was given to me. Paul, I just have to thank the director, Paul George sir. He's I don't know, I'm just indebted to him. I have to be. And Sharif sir, the producer, it is tough for any person to believe on a fresher. I'm kind of a fresher, and giving such a big screen space, it's truly a blessing, and I'm very happy to pursue my cinema career, which is starting in Mumbai. That's where my the entire professional journey has been. So I'm really happy, and it's a real moment. I think all I can say is that you have experience of a fresher, but then the talent of somebody really experienced. Kabir sir wants to say something. अभी picture बाकी है मेरे दोस्त. So I would like to add one thing for our leading man Anthony Verghese Pepe. We have seen him in Angamali Diaries, Jallikattu, and here it's a very different work. I just want you guys to give a big round of applause to Anthony Pepe. Thank you so much. Thank you so much for all those wonderful pointers as well. Now what I'm going to do is I'm going to be opening up the floor for the media. Question please. How was your chemistry with the casting as well as the director during the shoot of this movie? First of all, like I said, I'm very grateful that I'm part of this film. और cast आपके सामने है. Paul, Harishankar, Raj, Pepe. This is my first movie with Pepe, and he was damn good. कभी भी मतलब एक होता ना काम चोरी करना शॉट में, वो नहीं करता था कभी. हालांकि इज न्यू जॉनर फॉर हिम. इतना एक्शन उसने पहले कभी नहीं किया है. सो उसने लाइक क्लाइमेक्स आपने देखा है, तो ही वॉज वन ऑफ द हार्ड वर्किंग एक्टर्स मैंने पिछले कुछ समय में देखी हैं. जो कास्ट के साथ बहुत अच्छा लगा मुझे काम करके. राज के साथ मेरे काम नहीं था अनफॉर्चुनेट ब्रदर. हरी के साथ कॉम्बिनेशन थी. दुशाला के साथ कॉम्बिनेशन था. सो अच्छी यार मेहनती टीम थी यार. और क्या होता है ना, एक कहावत है, व्हेन यू वर्क विद ऑनेस्टी सो रिजल्ट अच्छा निकलता है. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने सबके साथ काम किया और चीज़ अच्छी निकल कर आई. डायरेक्टर का मैंने बोला कि यार वॉज वन ऑफ द वेरी हार्ड वर्किंग डायरेक्टर्स. मैंने उनका हार्ड वर्क देखा है. आई वॉज देयर फॉर 25 days फॉर दिस फिल्म, and sleepless nights. We used to sit together up to 12 o'clock, 1 o'clock. सुबह 6 बजे फिर सेट पर जाना. We used to discuss next morning scenes कि यार क्या करने वाले हैं. And he was like, he was having black coffees at nights and नहीं यार ये ऐसे करना है वैसे करना. मैं कहा सर रिलैक्स यार, हो जाएगा. इतना हो गया तो ये भी हो जाएगा यार. So शरीफ भाई का मैंने बताया आपको कि it's like coming back to home. Second movie Marco was massive hit, and finger cross यार, like we made this film with honesty. और जब soul correct होता है तो चीज़ें अच्छी बनती हैं. कन्नड़ा में कब आपको देख सकता हूँ कन्नड़ा इंडस्ट्री में? नहीं किया, बिकॉज जो मैं फिल्म स्क्रिप्ट सुन रहा हूँ अभी, नॉट अप टू द मार्क. सो यस, मलयालम इज कमिंग 2 films
3 हिंदी मूवीज, 2 तमिल फिल्में आ रही हैं, सो आने वाले 5 महीनों में 11 फिल्में रिलीज हुई मेरी यार। Thank you so much. Before we move to the next question, just 1 minute. The production house wants that आप लोग खाली set पे मेहनत करो यहाँ पे नहीं. So what I'm going to do is I'm going to quickly put in the chairs for all of you over बहुत here. बढ़िया काम किया। So Actually, I would if you can, tell. yeah. So they have ensured that you get the chairs on stage. So if you can move it over there. ब्लड एंड स्वेट इज़ वेरी कॉस्टली, सो हमने ब्लड एंड स्वेट दिया इसमें, और ओरिजिनल एलिफेंट्स फाइट्स है, सो आई थिंक इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग विच वी शोड। सो बाकी चीज़ें आपने देखी निकल कर आई, Yeah, और जब seriously. ब्लड और स्वेट दे देता आदमी तो फिर तो उसके बाद आंसर तो मैं मिल ही जाना चाहिए हमें। The first episode we have done in Bangkok with original elephants, Kicha Master. Those elephants are already worked in Ong Bak movie. So with that elephants we worked. That was really scary actually, but yeah, somewhat we have done that. Original fights, Yeah. which we shot in Thailand, Bangkok. Can we have the next question, please? Hello Kabir sir, Hello, hello. this side. The question is for you, like I saw this movie right now, the action, the thriller is wonderful. So what do you think, like when we see a regular thriller action films in cinema, and what makes this apart? Like what is the difference between them and in this film? यार एक तो मेरा आंसर एक तो सेम है कि ब्लड एंड स्वेट इज़ वेरी कॉस्टली हमने दिया है इस फिल्म को, और म्यूजिक इज़ रियली गुड। रवि बसरूड आपने देखा है कि KGF, सलार, ड्रैगन इज कमिंग, मार्को में उनका म्यूजिक था, वन ऑफ द की पॉइंट्स। एंड ऑफ कोर्स स्मगलिंग वर्ल्ड है यार, कि हाउ फाइट बिटवीन मारीज वर्ल्ड, इटीज वर्ल्ड एंड पेपेज वर्ल्ड, एक इमोशन के लिए वी आर फाइटिंग फॉर अ रीज़न। एक जैसे मेरे बाप का सपना था। कहानी सोल इज़ करेक्ट, कहानी बहुत अच्छी है, कास्टिंग बहुत अच्छी है फिल्म की, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, एंड सबने बहुत मेहनत करी है यार। आई एम श्योर आप लोगों को आपको भी पिक्चर अच्छी लगी होगी यार, ये क्वेश्चन निकल कर आया। सो यस। Hello. सर मेरा सवाल ये है कि ये फिल्म में हमें मार्को के फिल्म का एक हिंट मिलता है जहाँ पर मार्को के फादर को दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि ये फिल्म उस यूनिवर्स से कनेक्ट होती है। बट उस फिल्म के एंडिंग में भी आपकी डेथ हो जाती है और इस फिल्म के भी एंडिंग में आपकी डेथ हो जाती है, तो ये कैसे कनेक्ट होगा? क्या करूं यार, बार बार मार देते हैं, फिर प्यार इतना करते हैं, वापस ले आते हैं मुझे ये लोग। नहीं, इट्स नॉट मार्कोज यूनिवर्स, बट ऑफ कोर्स इट्स कनेक्टेड समहाउ टू लॉर्ड मार्को। आपने लास्ट में हिंट देखा है। सो मेरे लिए भी, मैं भी जो आपका क्वेश्चन है वो मेरा भी क्वेश्चन है यार, बट दे लव मी अ लॉट यार, मुझे बहुत प्यार मिला साउथ से। तो व्हेन आई हर्ड दिस फिल्म, इवन आई कैन बी पार्ट ऑफ लॉर्ड मार्को आल्सो, सो लेट्स सी। Can we move to the next question? Anji. Now today audience are expecting larger than life performance. So can you tell me, do you face any pressure while performing? नहीं यार, आई डोंट फील एनी प्रेशर। मैं बस आई रेड माई स्क्रिप्ट, आई रेड माई सीन, एंड आई गिव माई बेस्ट। मैं हर फिल्म को अपना आखिरी फिल्म समझ के करता हूँ कि यार ये मेरी आखिरी फिल्म हो सकती है, सो यू हैव टू गिव योर 1000%। तो मैं उस तरीके से परफॉर्म करता हूँ। और जब मार्को रिलीज हुई थी, आई रिमेंबर आई गॉट सम 28,000 मैसेजेस ऑन ट्वीट एंड इंस्टा कि यार एक सिंगल नेगेटिव मैसेज नहीं था, लेकिन इट वॉज अ वेरी डार्क कैरेक्टर। मेरे जीवन का, मेरे करियर का सबसे डार्क कैरेक्टर था वो। जब मैं वो फिल्म शूट कर रहा था, माई वाइफ वॉज 7 months प्रेगनेंट, और स्पेशली एंड मेरे लिए बहुत टफ था वो फिल्म करना। बट स्टिल लाइक आई सेड कि आई टेक गॉड्स नेम एंड यू नो, अपनी चेयर साइड में लेके बैठ जाता हूँ सीन प्रिपेयर करने से आधे घंटे पहले। आई डोंट अलाउ एनीबडी टू टच मी, आई डोंट अलाउ एनीबडी टू टॉक टू मी बिफोर माई सीन। सो दिस वॉज नॉट डार्क, दैट वॉज वेरी वायलेंट फिल्म, ये नहीं थी। सो लाइक आई सेड, आई एवरी फिल्म आई डू लास्ट फिल्म समझ के। तो मुझ पे तो कोई प्रेशर नहीं होता यार, सच में। बहुत चिल रहते हैं। मलयालम में डायलॉग्स बोलने थे मुझे 2 दिन पहले से, वो डायलॉग्स थे क्योंकि मैं डायरेक्टर के पीछे पढ़ के कि मुझे भेजो भेजो भेजो। इनके डायलॉग इनको उसी दिन मिले थे सुबह, और मलयालम में इट वाज काफी लंबा, है ना। मलयालम इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज बिकॉज इट्स अ टंग ट्विस्टर। तेलुगु में कुछ मैंने 60+ फिल्म, वो बहुत ईजी है मेरे लिए तेलुगु, ऑन द स्पॉट डायलॉग। बट मलयालम मेरे लिए भी था, बट दिस इज माई 5th मूवी। सो और मैं अपना होमवर्क करके जाता हूँ यार, कि एक्टर अपना होमवर्क करके आता तो डायरेक्टर भी खुश होता है, प्रोड्यूसर भी खुश होता है, एक्टर भी खुश होते हैं कि भाई याद करके आ रहे तो ईजी हो जाती चीज़ें यार। हेलो, इट वाज अमेजिंग प्रीमियर। एंड मेरा राज सर से एक सवाल है। सर, जैसा कि बताया आपने कि रियल एलिफेंट्स के साथ शूट किया, सो मतलब
कैसा एक्सपीरियंस रहा? व्हाट वाज द मतलब मोस्ट एग्जॉस्टेड डे? कोई ऐसा रहा हो कि कुछ इंसिडेंट हुआ हो सेट पे या कुछ ऐसा? पहला दिन फट गया यार, सीरियसली फट गया मतलब गन ये सब पकड़, मतलब वहाँ पे खड़ा रहना है मेरे को, डायरेक्टर ने बोल रहे हो सीधा आपके ऊपर आ जाएगा और मैं हिलना नहीं so it's scary actually, but you know, once we are entered into the character, no, I mean I have believed that you know, master टीचर मास्टर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, भाई कुछ नहीं होगा आप हिलो मत। तो मेरे को भी चलो ठीक है, एक बार करे तो बार बार करने के लिए जरूरत नहीं रखता, चलो एक बार अच्छा शर दिया। So that was scary actually, yeah. Though were trained elephants, but still, you know, even I shot that killing. I played the dad character. आपने notice करा हो जो हाथी जिसको मारता था, I played that character. एक आध scene ऊपर नीचे हुआ है. So I had a scene with I had a fight scene with elephant, but वो सीधा killing ले लिया गया. So it was even I was scared, little scared when he lifted me from here, that with teeth. So amazing. Trained elephant से, but still यार कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो यार दिन महादेव का नाम लेके जाता था यार जब थाईलैंड में था। एंड एक्टर्स के लिए मतलब एक और सवाल है मेरा, सॉरी, एक्टर्स के लिए हमें लगता है कि हर सीन ही हम जान डाल देते हैं कि हर सीन की बात हो, बट इस फिल्म के रिलीज के बाद में आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा सीन जिसके बारे में मतलब लोग बात करें, या आपका पर्सनल कोई ऐसा सीन हो जिससे आप बहुत अटैच हो, मतलब इमोशनली कनेक्ट करते हो, कोई ऐसा सीन? ये आप मुझसे पूछ रहे हो? हाँ मतलब मैं सबसे अगर छोटा छोटा आंसर मिल जाए तो। दोबारा आने दो क्वेश्चन एक बार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरी फिल्म एज एन एक्टर हर किसी को लगता है हर सीन में जान डालते हैं। एज एन एक्टर इस फिल्म का कोई भी एक ऐसा सीन जिससे आप बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हो और ऑडियंस उसके बाद में मतलब रिलीजिंग के बाद बात करे, कुछ कोई भी ऐसा सीन? अगर मैं बात करूँ तो मेरा इंट्रोडक्शन सीन जो ईडी की एंट्री होती है, बिकॉज वाज अ बिग बिल्डअप एंड मेरा और पार्थ का एंट्री था, वो शायद वो और आई थिंक थोड़ा सा और दे सकते थे उसको, तो और अच्छे से शूट हो सकता था थोड़ा सा। तो वो बिकॉज व्हेन यू हैव अ बिग बिल्डअप ऑन समवंस कैरेक्टर की, यार उसको अपने कार्टल से नहीं निकालना चाहिए था, एंड इज वेरी पावरफुल। सो वो सीन था, मुझे देख के लगा थोड़ा सा कि हाँ वो और नाइसली शॉट हो सकता था, बिकॉज हम तीनों थे उस सीन में ना, है ना, वो थोड़ा सा। बाकी आई लव द फिल्म, इमोशंस भी हैं, एंड इट्स ऑफ कोर्स इट्स ए रेटेड बट ए फॉर वायलेंस, ए फॉर एक्शन, नॉट फॉर वायलेंस। सो ईडी अपने बाप के लिए लड़ रहा है, मारी अपनी एक कार्टल अपना जो फॉरेस्ट को राजा बन के बैठा है, कार्टल का राजा है, और एंट्री वापस आता है, एंट्री भी एक रीजन के साथ आ रहा है। सो इट्स गैंग लॉर्ड, गैंग फर्स्ट फिल्म। अमेजिंग, थैंक यू। हेलो हाय, मेरा नाम मृदुल है। मेरा सवाल आप सभी लोगों से है। सबसे पहले कबीर सर आप बताइए मुझे कि आपने मार्को में आपने विलेन रोल प्ले किया था, वो फिल्म में आपका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ब्रूटल था, छोटे बच्चे के साथ भी सीन्स हैं वो सारे बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। वो फिल्म की यूएसपी थी कि वो उस टाइम की सबसे ज़्यादा वायलेंट गोरी हिंदी फिल्म इंडियन फिल्म थी। इस फिल्म की क्या यूएसपी है आपके अकॉर्डिंग? यार देखो, एक तो एक्शन हमारे सिनेमा वर्ल्ड से कभी बाहर नहीं गया, एक्शन हमेशा फोर्टे है। और आजकल अगर आप रिसेंटली धुरंधर में रिलीज हुई है फिल्म, एक्शन ओरिएंटेड फिल्म है, एंड शरीफ भाई क्यूब्स एंटरटेनमेंट जिनका है, शरीफ भाई ही इज़ अ वेरी ग्रेट प्रोड्यूसर, एंड वो यार उनका प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है इन टर्म्स ऑफ फिल्म। अगर आपने जैसे फिल्म देख ली है अभी तक, मलयालम ऑडियंस, मलयालम सिनेमा जो बहुत लिमिटेड बजट में अच्छी चीज़ें बनाना जानता है बहुत अच्छे से, एंड वो भी इस फिल्म को देख के लगा हुआ। मार्को वॉज अ वेरी लिमिटेड बजट, आई थिंक 20 CR के आसपास, एंड वी मेड अप टू 110 CR। सो एक तो ये बहुत क्वालिटी है कि यार आप छोटे में बहुत अच्छा प्रोडक्शन क्वालिटी दिखाते हो। दूसरा, लाइक मैं हमने बोला था कि सेम क्वेश्चन था कि यार हमने इसको अपना ब्लड एंड स्वेट दिया इस फिल्म को, और वो दर्शाता भी है कि मेरी परफॉर्मेंस, पार्थ की परफॉर्मेंस, एंटनीज के करियर में, ये पेपे के करियर में बहुत डिफरेंट फिल्म है। इतना एक्शन उन्होंने कभी किया नहीं, और व्हाट एफर्ट ही वाज पुटिंग ऑन सेट, तो हम विटनेस थे उसके। चोट भी लगी हम लोगों को, मेरा तो मतलब क्लाइमेक्स में खून भी निकला था, जो नाइफ लग गया था मुझे। सो जब आप अपना खून दे देते हो यार पिक्चर, तो फिर रिलीज अच्छे से होगी, और फिर यार अप्रिशिएशन मिलता है। बताओ भाई। बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि आइवरी की तस्करी सच में होती है, और ये बहुत बड़ा फैक्ट है। उस वर्ल्ड में अभी तक डिप इन किसी ने किया नहीं है, खासकर केरला में जाके, केरला और श्रीलंका के बीच का जो नेटवर्क है, वो वहाँ के कार्टेल को इस मूवी में दर्शाया जा रहा है।
स्मगलिंग वर्ल्ड जो टस का ऐसा बना, ऐसी पिक्चर नहीं बनी अभी नहीं बनी और बहुत अच्छे से इस वर्ल्ड को दिखाया गया है किस तरीके से एलिफेंट्स को मारा जाता है। तो वो एक कनेक्शन जो है और वो जो हंटर्स के बारे में बात की गई है उसमें जो गांव दिखाया गया है जो जाकर एलिफेंट को मार रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह से आ रहा है जो होता है और उनके साथ में क्या पिछली फिल्म किल जो थी उसमें आपका बड़ा कमाल का काम था और उसका एक्शन और इसका एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों एक्शन फिल्म से। क्या डिफरेंट था आपके अप्रोच में टुवर्ड्स व्हाइल फिल्मिंग द फिल्म? जी बहुत डिफरेंस है किल जैसी फिल्म में और इधर। किल वाज मोर फास्ट पेस्ड रॉ एंड रस्टिक एक्शन जो कि बिना कोई पॉजेस के आई थिंक हम लोगों के फाइट सीक्वेंसेस 30, 40, 50 सेकंड के सीक्वेंसेस हम विदाउट कट कर रहे थे। 2, 3 कैमरा लगे होते थे, बॉडी क्रैम्ड स्पेस में था वो। सो उसका एक्शन वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई डिड हियर। जैसे कि मैंने बात की कैरेक्टर भी दोनों बहुत अलग है, ठीक है। उसका इमोशनली ड्राइविंग पॉइंट बहुत अलग था, यहाँ पे उसका पैसा और ईगो है, वहाँ पे उसका उनके डैड थे कैरेक्टर के। तो also I love your outfit by the way. thank you. Yeah, so the USP is elephants, and with elephants movies have not done wrong thing. So I think we are all waiting for people to say and you all to tell about the movie. Yeah. हाथी हम सबका साथी, that's what it is. Hathi. मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल Your point of view regarding the USP. आपको क्या लगता है? साथ दे दो, पिक्चर हिट कर दो बस। आपको क्या लगता है हिंदी ऑडियंसेस को क्या सबसे ज्यादा पसंद आएगा इस फिल्म? It's all about action, this film. So they focused only on action, raw action देने के लिए. So शायद वो action films नॉर्थ इंडियंस को अच्छा लगता हो। यार हिंदी ऑडियंस wants to watch a good हिंदी फिल्म these days, चाहे वो मलयालम हो, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो। आप उनकी प्लेट में अच्छा खाना परोसोगे तभी वो थिएटर तक चल के आएंगे। कोई 600 रुपये 700 रुपये नहीं लगाने वाला है। मार्को 87 थिएटर्स पर रिलीज हुई थी एंड देन एक हफ्ते में 1500 थिएटर्स थे। तो ये तो बहुत अच्छे नंबर्स पर रिलीज हो रही है फिल्म। सो अच्छा खाना दोगे तो पब्लिक आकर खाएगी यार, ऐसा सिंपल है। और मार्को केरला से फिल्म आई थी जो कि हिंदी में जिसके थिएटर्स बड़े थे, और किल बॉलीवुड से फिल्म आई थी जिसके केरला में थिएटर बड़े थे। We were shooting on Marco that time. ऐसा नहीं है कि साउथ का सिनेमा यहाँ देखा जा रहा है, यहाँ का भी सिनेमा Everybody wants to watch a good film यार these days. बाउंड्रीज धीरे-धीरे करके कम तो हो रही है। Congratulations. Hi, my name is Farhad Dalal. I'm from Popcorn Reviews. My question, मेरा सवाल है आप चारों से कि आपके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स का पहले तो ब्रीफ क्या था, और दूसरा सवाल ये है कि आई एम अज्यूमिंग कि आप चारों ही आर नॉट वेल वर्स्ड विद द मलयालम लैंग्वेज, क्योंकि वो ओरिजिनल में शूट हुआ था, आपके लिए नई लैंग्वेज थी। तो हर एक सीन में आप कैसे इंश्योर करते हैं एज एन एक्टर कि इमोशन लैंड हो, अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिनल लैंग्वेज के you have to mouth your lines in Malayalam but the emotions have to be intact. So ये आप कैसे ensure करते हैं? लाइक चारों से सवाल है। या पहली बार ब्रीफ देने से डायरेक्टर ने बोला है कि इसमें ज़्यादा डायलॉग्स नहीं रहेगा, आप लोग देख सकते हो। बेसिकली द कैरेक्टर मारी कम्स फ्रॉम मदुरई, तमिलनाडु। सो मलयालम बोलने की ज़रूरत नहीं है, और 3-4 डायलॉग ही है तो प्रॉब्लम नहीं है। सो वी लैंड ऑन द सेट इटसेल्फ एंड वी डिलीवर्ड इट। सो दैट इज यार मैं थैंक यू। सो एसपी नेल्सन ऑब्वियसली वो तेनी डिस्ट्रिक्ट का एसपी था, एंड मुझे जब कॉल आके पॉल सर ने बोला कि ये तमिल भी बात करेगा और मलयालम भी बोलेगा, एंड हाफ 50-50 था। And I am playing the brother-in-law of he is my brother-in-law of my character. So Malayalam was not tough for me because Tamil and Malayalam are very similar, slightly tongue twisters, like they said it's tongue twister. So we managed it. It was neatly brief हमें अच्छा मिला था पहले ही। मंगलिश में हमें पहले दे दिया डायलॉग्स, एंड उसका मीनिंग्स हमने अपने लैंग्वेज में लिख लिया, एंड देन उसको एक बार 2-3 बार हमने अंदर कैरावन के अंदर ही प्रैक्टिस करके ही हम जाते हैं व्हेन वी गो टू द सेट। या सो वी वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड।
Yeah, I want to give credit to my first movie director, Jill, which was released in 2015. Opposite Gopi Chand, Prabhas was the producer of that film, Prabhas sir. And मैंने आज तक मतलब इतने 10 साल के करियर में कभी प्रॉम्प्ट नहीं लिया है, और ना मैं हिंदी बोलता ना मैं ABCD बोलता. सो क्रेडिट गोज टू माई फर्स्ट मूवी डायरेक्टर राधा सर, बिकॉज उन्होंने 15 दिन पहले मुझे स्क्रिप्ट दी थी. आई हैड सम 22 सीन्स एंड ही वाज लाइक कि कबीर यू हैव टू लर्न योर ओन डायलॉग्स. जो मेरी पहली फिल्म थी, जो मेरा वो एफर्ट था, वो आज मेरे लिए ईजी है चीज़ें करने में. अगर मैं उस टाइम अपने मन से चोरी कर लेता या कि अरे चलना मैं हिंदी बोल देता हूँ या बैकड्रॉप या स्पोर्ट्स ले लेता हूँ, बट ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विद मी एंड कि यू हैव टू लर्न, यू वॉन्ट टू एसोसिएट डायरेक्टर्स विद यू, यू वॉन्ट वॉइस नोट्स, यू वॉन्ट इंग्लिश में डायलॉग चाहिए, सो जो भी तुझे चाहिए तो ले ले, बट आई वॉन्ट यू टू से योर ओन डायलॉग्स ऑन द सेट. सो 15 दिनों में मैंने वो मेरे कुछ 22 सीन थे पहली मूवी में. आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज उससे मुझे आज इतनी हेल्प मिली है कि मुझे डायलॉग्स मिलते हैं, तो मैं वही अपना प्रोसेस कैरी करता हूँ. सो जब जिल मूवी रिलीज़ हुई थी पहली फिल्म 27 मार्च 2015 को, तो मैंने 7 दिनों के अंदर 11 फिल्में साइन की थी उस टाइम. और आज भी वही प्रोसेस करता हूँ कि जैसे एक दिन पहले आई आस्क फॉर दे सेंड मी द वॉइस नोट्स. मैं सुनता हूँ उनको, मलयालम हो चाहे तमिल हो, सो आई लिसन एक दिन पहले सो दैट मैं उस स्लैंग पकड़ सकूं एंड उनको लिख कर, जैसे हम बच्चे थे हमारे फादर साहब बोलते थे कि आप लिख कर देखो, आप जब लिखते तो वो मेमोरी बन जाती है, वो याद हो जाता है. तो मैं आज भी इतनी फिल्में करने के बावजूद भी मैं एक दिन पहले डायलॉग्स मंगाता हूँ अपने, सुनता हूँ, लिखता हूँ, याद करता हूँ, सो दैट अगले दिन वो चीज़ें ईजी हो. और ये समहाउ टाइम भी सेव करता है यार. दूसरा एक्टर को मुझे ज़्यादा टेक नहीं देने पड़ते. मेरा को एक्टर इज़ वेरी हैप्पी, डायरेक्टर इज़ वेरी हैप्पी कि यार मतलब ही कम्स विद फुल होमवर्क करके आता है. सो दिस हाउ माई प्रोसेस इज कि वॉइस नोट सुनना, इंग्लिश में या टंग्लिश में या तमिल लैंग्वेज में डायलॉग आ जाते हैं. सो मैंने बहुत रेयर, तो मुझे ऐसा लगता है यार अगर आप, सिनेमा हैज नो लैंग्वेज बैरियर्स दिस डेज. आप मेहनत करते हो कोई भी लैंग्वेज कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं. थैंक यू. हाय फराज. सो हमको एक ट्रेनर दिया जाता है जो कि हमारे साथ होता है.